Yes. So after completing the features of the small intestine, we'll move towards organ in specific of small intestine, and the first organ is duodenum. So duodenum in Greek term it is known as duodecadactylos. That means 12 fingers, the size of the or the length of the 12 फिंगर को मिला के that is around 10 inches. Okay, so 10 इंच, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 2.5 सेंटीमीटर. So 10 into 2.5, हाँ, 25 centimeters. Okay, so the length of duodenum is 25 centimeter. So duodenum, shortest, widest, most fixed part. So most fixed means most of the parts of this duodenum is retroperitoneal and they are fixed, except okay, so this proximal part and this distal part, only these part, the proximal part of duodenum and as well as the distal part, ठीक है, duodenum का अंतिम का हिस्सा और शुरुआत का हिस्सा ही मोबाइल है, यानी वो मूवमेंट उसमें गति है, नहीं तो ये पूरा पार्ट जो है इट इज फिक्स्ड इन द सेंस कि इट इज नॉट एट ऑल मोबाइल, अपने से मूव नहीं कर सकते हैं, दे आर फिक्स्ड. सो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ duodenum आर फिक्स्ड, दे आर शॉर्ट पार्ट्स एंड दे आर वाइड. सो वाइड का मतलब हो गया इसका जो ल्यूमन का जो diameter है that is widest, as well as the most fixed part of the small intestine. Okay, if you see the jejunum, it is completely mobile. उसको आप during surgeries you can lift it with the hand, ठीक है. Then कहां से कहां तक है? So it starts from the pylorus and to duodenojejunal flexure, यानी कि जो लास्ट पार्ट डिस्टल है, यहां से जो जेजुनम स्टार्ट होता है. यू नो व्हाट इज फ्लेक्चर? फ्लेक्चर इज नथिंग बट अ शार्प बेंड. जैसे आप जा रहे हो रास्ते से और अचानक ऐसा बेंड आ गया, सो ये जो एंगल बन रहा है दैट इज नथिंग बट फ्लेक्चर. ओके, सो डियोडिनम जेजुनम, यहां से जेजुनम शुरू हुआ, सो डियोडिनम जेजुनम DJF. Okay, duodenum jejunum flexure. Now what is the shape exactly? You can see it is curved, right? So it is curved. Curved is nothing but C shaped again. Okay, C shape होता है and ये जो curve है इसमें किसका वास होगा? The head of the pancreas. Okay, this is the uncinate process of the pancreas. This is the head part of the pancreas. This is the body part and this is the tail part. इन दोनों में से एक माइनर पैपिलरी डक्ट, मेजर पैपिलरी डक्ट और इधर से आपका ये जो गॉल ब्लैडर का जो पार्ट है, ये तीनों मिलकर के एम्पला वैटर जिसको बोलते हैं, ये तीनों मेजर pancreatic duct as well as the bile duct. तो ये दोनों मिलकर के जो है सेकेंड पार्ट ऑफ duodenum में खुलते हैं. दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ duodenum. तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. ओके, सो अगर यहां से जो बेंड हो रहा है तो इसके पास जो ऑर्गन है, लिवर है, इससे नियर बाय, तो हम क्या बोलेंगे?
hepatic flexure, क्योंकि liver के पास bend हो रहा है, we'll call it as hepatic flexure. Okay, this is duodenojejunal flexure. Okay, we will see further the other two other flexure. So now you are quite clear that this organ is sheath-shaped, mostly fixed, curved, starts from the pylorus, ends till the duodenojejunal flexure. Now if you see the location of this duodenum, then you will see that most of the part of duodenum is within the umbilical region. Only some elevations you can see in the epigastric region, right? But since it is very minimal, you can say that since 90 to 95% of the part of the duodenum, they are lying within the umbilical region. So we can see that this organ is completely located in umbilical region. Okay. Now if you see at the level of vertebra, then exactly the proximal part is coming at the level of first lumbar vertebrae, second lumbar vertebrae and third lumbar vertebrae. Okay, so posteriorly, if you see the location, first, second and third lumbar vertebrae, and if you see the according to the 9 regions of abdomen, most of the part, 99% of the part is within the umbilical region. Clear? Now if you see, go into the next slide. Yeah, 9 regions you can see it is coming within the transpyloric plane, and this is called pubic tubercle. वहां से पास होगा तो we'll call it as tubercular plane. This is nothing but pubic tubercle, right? Transtubercular plane. Now if you move towards the next slide, if you see the length and the parts of the duodenum, so now we will try to divide the total length into 4 parts, and the first part we call it as the superior part. तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, इसलिए हम इसको सुपीरियर पार्ट बोलेंगे. देन विल कॉल इट एज, क्योंकि वो नीचे की तरफ गिर रहा है, दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग पार्ट, एंड देन this is horizontal and this is ascending part. Okay, so superior part or the first part, what is the length? 5 centimeter. Okay, then second descending part 7.5 centimeter, third part 10 centimeter, and fourth part is how much? 2.5 centimeter. Clear? Now after seeing the division of duodenum, we will move towards the flexures. So first of all, what are these flexures? So flexures are nothing but sharp bend. Okay, so if they are creating almost an angle of 90 degree, then we call it as a flexure, or it can be not exactly 90 degree angle also, but it is a sharp bend. Okay, so you can see over here is the superior part. Okay, if you see the superior part, again there is an angle. Okay, so since this is a superior part, we call it as superior duodenal flexure. Okay, superior duodenal flexure. Then another, ये सुपीरियर ऊपर की ओर है इसलिए सुपीरियर बोले, ये नीचे की तरफ है तो इसको हम इंफीरियर बोलेंगे. तो inferior duodenal flexure, and the next part of this is the jejunum. So this part we will call it as duodenojejunal flexure. So these are the 3 flexure. Now individually we will see the parts of the duodenum. We will see each and every part in detail, their features, especially their peritoneal relations and visceral relations, because each part
has got a different visceral relations. Okay, so the first part of duodenum begins with the, so first part कहां से शुरू होगा? स्टमक का एंड पार्ट जिसको पाइलोरस बोलेंगे, पाइलोरस से शुरू होगा और ये कुछ इस तरह से मूव करेगा, जैसे ऐसे शुरू हुआ फिर थोड़ा ऐसे बैकवर्ड जाएगा. ठीक है, सो सिंस इट इज ऐसे स्टार्ट होकर के इट इज गोइंग बैकवर्ड्स. ओके, इट इज गोइंग बैकवर्ड्स. देन बैकवर्ड्स टुवर्ड्स द, which side it is going? Towards the right side. Then it joins the second part at superior duodenal flexure. तो सुपीरियर पार्ट जो है शुरू हुआ पाइलोरस से और वो जैसे शुरू होता है थोड़े जो है पीछे की तरफ, थोड़ा पीछे की तरफ जाएगा और थोड़ा पीछे की तरफ और थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा. ठीक है, यू कैन सी हियर, यहां से मूव करके थोड़ा ऊपर गया और थोड़ा पीछे जाएगा. ठीक है, एंड देन किस तरफ मूव करेगा? टुवर्ड्स द राइट, और सेकेंड पार्ट को ज्वाइन करेगा जहां पे वो फ्लेक्चर होगा. ठीक है, सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ duodenum, if you see the peritoneal relation, what is peritoneum? Peritoneum is nothing like a bag-like structure. Okay, and they are, सो पेरिटोनियम क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ऑर्गन्स सिचुएटेड है. ठीक है, तो जो पीछे वाला होगा हिस्सा पेरिटोनियम का उसको हम बोलेंगे रेट्रोपेरिटोनियम. ठीक है, या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पेरिटोनियम, और उसके एक को बोलेंगे जो भी वो जो बैग लाइक जो शीथ है अगर उसको बाहर आगे से टच करेगा तो हम उसको बोलेंगे एंटीरियर रिलेशन ऑफ दैट पेरिटोनियम. ठीक है, और जो पीछे से टच करेगा उसको पोस्टीरियर कवरिंग बोलेंगे. ठीक है, सो अगर हम पेरिटोनियल रिलेशंस की बात करें तो मोस्ट पूरा डिओडिनम जो है क्या है? रेट्रो पेरिटोनियल. ठीक है, एंड दे आर फिक्स्ड. ठीक है, एक्सेप्ट जहां पे उसका एंड है जिसको हम प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड बोले हैं, दे आर मोबाइल. ठीक है, तो एंटीरियरली अगर हम आगे से अगर हम बात करें इसको टर्न कर सकते हैं. तो हम आगे से जो बात करें, जो आगे से जो स्ट्रक्चर्स जो पेरिटोनियम उसको एक शीट प्रोवाइड कर रहा है, दे आर कवर्ड विद ओनली पार्शियली, यानी कि जो ये वाला हिस्सा है दैट इज पार्शियली कवर्ड विद द पेरिटोनियम, नॉट कंप्लीटली. ओके, एंड देन इट सेज अगर हम सुपीरियर पार्ट कितना 5 सेंटीमीटर, तो 5 का जो आधा 2.5 सेंटीमीटर है जिसको हम प्रॉक्सिमल पार्ट बोलेंगे वो मोबाइल है. मैंने बोला है सुपीरियर पार्ट मोबाइल है, लेकिन सुपीरियर पार्ट में कितना पार्ट मोबाइल है? सिर्फ पहला 2.5 सेंटीमीटर. The first 2.5 centimeter is mobile and they are attached with the lesser and greater omentum. ठीक है, and the rest distal 2.5 centimeter is retroperitoneum. As मैंने क्या बोला? It moves upward and backward. तो जो backward वाला हिस्सा जाएगा they becomes retroperitoneal and they are covered only anteriorly. तो सिर्फ superior part का जो proximal हिस्सा है पेरिटोनियम एंटीरियरली सिर्फ उतना ही कवर करता है, रेस्ट आर रेट्रोपेरिटोनियल. क्लियर? रेस्ट आर रेट्रोपेरिटोनियल. और अगर विजुअल रिलेशंस की बात करें, विजुअल रिलेशन मतलब डिओडिनम के जो पड़ोसी होंगे, जो ऑर्गन्स उससे उसके पड़ोस में होंगे, तो एंटीरियरली कौन सा ऑर्गन आ रहा है? लिवर. और लिवर का कौन सा पार्ट आ रहा है? इसको कौन सा पार्ट बोलते हैं? कौन? लिवर के 2 लोब हैं, राइट लोब एंड, हाँ, तो लेफ्ट लोब को कौन सा लोब बोलेंगे? क्वाड्रेट लोब. ठीक है, क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट लोब है ना, तो क्वाड्रेट लोब ऑफ द लिवर, देन
क्योंकि गॉल ब्लैडर इसके ऊपर आ रहा है तो हम गॉल ब्लैडर को भी लेंगे। तो एंटीरियरली द राइट लोब ऑफ द लिवर एज वेल एज गॉल ब्लैडर। पोस्टीरियरली यानी कि इसके पीछे, तो पीछे क्या है, डिओडिनम के पीछे से जो एक आर्टरी आएगी जिसको हम गैस्ट्रो डिओडिनल आर्टरी बोलेंगे, ठीक है। और एक मैंने स्ट्रक्चर अभी बना के दिखाया था कि उसके पीछे से बाइल डक्ट आ रहा है, ठीक है, जो आगे चल के सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम में जाएगा, राइट। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम, मेजर पेपिलरी डक्ट एज वेल एज बाइल डक्ट दोनों मिलकर के सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम में। लेकिन बाइल डक्ट जो है इसके पीछे से आकर के और ये वाला हिस्सा दोनों मिलकर के सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम में जाएंगे। तो पोस्टीरियर इसके ऊपर से बाइल डक्ट इसके पीछे से जा रहा है, ठीक है। लिवर से जो बाइल डक्ट निकला वो उसके पीछे से सुपीरियर पार्ट से जा रहा है, एंड दैट इज व्हाई बाइल डक्ट इज पोस्टीरियरली रिलेटेड। और इसके पीछे क्या है, इसके पीछे पोर्टल वेन जाएगा ना। देखो अगर ये आगे का हिस्सा है तो ये पीछे का हिस्सा होगा, तो क्या हो रहा है, पोर्टल वेन कैसे जा रहा है, पोस्टीरियरली, ठीक है। पोर्टल वेन इज गोइंग बिहाइंड, क्लियर। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडिनम विच आर रिलेटेड, ठीक है। तो सुपीरियर पार्ट की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर मोबाइल है, दे आर अटैच्ड विद द ग्रेटर एंड लेसर ओमेंटम। आई विल कम टू द ओमेंटम, व्हाट ओमेंटम इट इज, हाउ वो शुरुआत कैसे हुई है, ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम क्या होता है, लेसर ओमेंटम क्या होता है, हम उस पर आएंगे एक अलग से क्लास लेके। बट एज ऑफ नाउ यू रिमेंबर कि दे आर इन रिलेशन विद द ओमेंटम्स, एंड द रेस्ट बाकी जो 2.5 सेंटीमीटर है दे आर इन द रेट्रोपेरिटोनियल साइड। इफ अगर आप विजुअल रिलेशन की बात करें तो एंटीरियरली सुपीरियर पार्ट का उसके आगे जो है गॉल ब्लैडर एंड राइट लोब ऑफ द लिवर, एंड पोस्टीरियरली उसके पीछे गैस्ट्रोडियोडिनल आर्टरी, बाइल डक्ट एंड पोर्टल वेन। ये कहां से आया है, सीलेक्ट ट्रंक का एक ब्रांच निकलता है ना, हेपेटिक कॉमन हेपेटिक आर्टरी, और उसी से गैस्ट्रोडियोडिनल आर्टरी निकलता है। गैस्ट्रोडियोडिनल आर्टरी पीछे जाता है, उसी में से एक छोटा ब्रांच सुप्राडियोडिनल आर्टरी को सप्लाई करता है, ठीक है। और इसमें से जो आपके ग्रेटर कर्वेचर को गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी सप्लाई कर रहा था वो उसी का पार्ट है ना, गैस्ट्रोडियोडिनल आर्टरी का पार्ट। ओहो, याद आया कुछ, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, याद आया। देन ये आगे चल के गैस्ट्रोडियोडिनल आर्टरी दो भाग में बढ़ जाता है, दैट इज गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी एंड सुपीरियर पैनक्रियोटिडियोडिनल आर्टरी। ये जाकर के बीच वाले हिस्से को सप्लाई करेगा। अब ये क्या बच गया, एक है एक और ब्रांच निकलता है, दैट इज सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, याद है वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है ना। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी तीसरे भाग और चौथे भाग को सप्लाई करेगा। आर्टरियल सप्लाई पता चल गया, इतना ही है इसमें, रिकॉर्ड है, चल रहा है। हाँ, दिस डायग्राम विल गिव यू अ बेटर डिसेक्टेड पार्ट है ना। ये डिओडिनम का पार्ट है, ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है और पीछे की तरफ जा रहा है, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ओके। एंड देन कहां तक आ रहा है, सुपीरियर डिओडिनल फ्लेक्सर,
फिर उसके बाद सेकंड पार्ट आता है इंफीरियर डियोडिनल फ्लेक्सर, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट ये बेस्ट एग्जांपल है, देखो ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर का बाइल डक्ट पीछे से जा रहा है, इसके पीछे से जा रहा है, एंड पोर्टल वेन भी पीछे से जा रहा है। सी अनदर एग्जांपल हो जाए, सो विजुअल रिलेशन यू हैव सीन एंटीरियरली पोस्टीरियरली, दो चीज देखा ना, anteriorly caudate lobe of the liver and gallbladder, posteriorly GDA, bile duct and portal vein. Superiorly epiploic foramen. I will come to this epiploic foramen because again this is a separate entity, so it's like we call it as foramen of Winslow, एक ऐसा ओपनिंग जिसके थ्रू जो हमारा आयोटिक जो है फर्दर डिसेंड करता है, वो ऐसा ओपनिंग है जिसके थ्रू एब्डोमिनल आयोटा नीचे डिसेंड करेगा। तो विल कम सेपरेटली फॉर दैट, बट एज ऑफ नाउ यू रिमेंबर दैट सुपीरियरली एपिप्लोइक फोरामेन, देन इंफीरियरली पीछे से हेड एंड नेक ऑफ द पैनक्रिया, ओके। This is again you can understand better from this diagram. This is there in your BD Chaurasia book. ठीक है। Next you write arterial supply, supraduodenal artery. Supraduodenal artery is also known as artery of Wilkie. Artery of Wilkie's, ठीक है। So supraduodenal artery will give branch to right gastroepiploic artery, and then this will give branch to what? Superior pancreatoduodenal artery. So gastroduodenal artery, two branches, superior pancreatic duodenal artery and right gastroepiploic artery. ये इसका आधा भाग है। आपको याद होगा जब मैंने इसका जेनेसिस बताया था, तो क्या था कि अपर हिस्सा कैसे शुरू हुआ था गर्भ में, मीसो एक्टोडर्म कहां से शुरू हुआ था, जर्म सेल थ्योरी में कहां से शुरू हुआ था, कुछ हिस्से, आधा हिस्सा किससे और आधा हिस्सा किससे, कुछ एक्टोडर्म से और कुछ मेसोडर्म से, राइट। याद है? एनीवन कैन रिकॉल दिस? मैंने लिखवाया है, मैंने लिखवाया है, नहीं याद है? टीचर्स में नहीं लिखवाया है? यू डोंट रिमेंबर दिस? मिडगट से फोरगट, मिडगट, हैंगगट, मिडगट से distal part of the duodenum, jejunum, ileum, and foregut से proximal part of the duodenum. So this is the division. इसीलिए हमें यहाँ पे एक डिविजन मिलता है ब्लड सप्लाई में।
ऐसा हो सकता था ना कि आगे चल के फर्दर इसको कंटिन्यू करता, लेकिन बीच में डिवीजन है ना, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के ब्रांच से सप्लाई हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो एक्टोडर्म वाला जो पार्ट है, तो आपका जो सीलिएक ट्रंक एक्टोडर्म से ही होगा, ठीक है, सॉरी फोरगट से होगा, फोरगट पार्ट से। सीलिएक ट्रंक विल कम फ्रॉम द फोरगट पार्ट। स्टमक का भी ब्लड सप्लाई फोरगट से। आपका जो डिस्टल पार्ट यानी कि सेकेंड पार्ट का आधा भाग और हॉरिजॉन्टल भाग एंड असेंडिंग भाग, these all will be supplied from the branch of superior mesenteric artery. Clear? So superior part and half of the second part will be supplied from the duodenal artery, which will bifurcate into right gastroepiploic artery and superior pancreatoduodenal artery. And from the superior mesenteric artery, the rest half of the duodenum, okay, will be supplied from inferior pancreatic duodenal artery, which is a branch of superior mesenteric artery. Clear? सुपीरियर मेसेंट्रिक, नीचे वाला हिस्सा सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का ब्रांच है, that is inferior pancreatic duodenal artery. This is superior pancreatic duodenal artery and right gastroepiploic artery, and this is superior duodenal artery, which is the branch of common hepatic artery, will give rise to hepatic artery proper and supra duodenal artery. Clear? बस। सुपीरियर पार्ट ऑफ डिओडिनम यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम को का ब्लड सप्लाई देखने के बाद मैंने उसमें प्रॉक्सिमल 2.5 सेंटीमीटर में लेसर ओमेंटम और ग्रेटर ओमेंटम की चर्चा की थी। तो ओमेंटम होता क्या है? ओमेंटम को हम बोलते हैं, जैसे सोसाइटी के लिए चोरी ना हो उसके लिए पुलिसमैन है, उसी तरह से एब्डोमेन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, इमीडिएट रिस्पांस हो, इसीलिए ओमेंटम को पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन बोला जाता है। ठीक है, पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन। तो होता क्या है ओमेंटम? तो क्या होता है, फैट का एक लेयर होता है, ठीक है, फैटी लेयर ऑफ टिश्यूज इनसाइड योर एब्डोमेन दैट हैंग्स डाउन लाइक एन एप्रॉन। जैसे एप्रॉन आप जैसे टांगते हो ना, तो उसी तरह से ये जो फैट है, दिस इज द पार्ट ऑफ ग्रेटर ओमेंटम। ठीक है, तो ये जो सही है ना, चलो। सो ओमेंटम इज ऑल्सो नोन एज पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन। फैटी लेयर होता है, पूरा फैट से, ओमेंटम मतलब पूरे फैट से बना हुआ एक एप्रॉन की तरह लटकता हुआ। ठीक है, जैसे अगर मैं, ये आपका मान लो लार्ज इंटेस्टाइन है, तो
इंटेस्टाइन से हैंग करता है। ये पूरा फैट, सो दिस पार्ट वी कॉल इट एज ग्रेटर ओमेंटम। ठीक है, तो इसके दो भाग होते हैं जिसको हम लेसर ओमेंटम और ग्रेटर ओमेंटम बोलते हैं। तो एप्रोन लाइक हैंग्स का मतलब क्या होता है, ये चारों तरफ से जुड़ करके ये फैट लटके हुए रहते हैं। ठीक है, एक सेंटर में। ठीक है, तो हैंग्स लाइक एन एप्रोन, इधर से ये इधर से ये, hangs like an apron which hangs down like an apron from your stomach। तो इसके कुछ भाग जो है ये ग्रेटर ओमेंटम का पार्ट हो गया और कुछ भाग लेसर ओमेंटम का पार्ट हो गया। which hangs down like an apron from stomach and covers your intestine। ठीक है, it's a part of peritoneum। what is peritoneum? sheath of connective tissue। ठीक है, so this is also along with that sheath, when you have this fat we call it as omentum। okay, now there are two types of omentum, one is the greater omentum and other is the lesser omentum। तो greater omentum क्या होता है, hangs down from the greater curvature of the stomach। तो greater curvature of the, तो lesser curvature greater curvature याद है, ये पूरा इस तरह से जो hang करेगा along with your large intestine everything, so we call this as greater omentum। so when you open the abdomen, no, during surgery you have to put this fat, उठा करके पहले उसको साइड करो और then start operating on the intestine, liver or anything। okay, एक शीत फैट एक परत है, एक झिल्ली की जैसे परत है, जैसे आप इंटेस्टाइन को जैसे हाथ में लेके, जैसे बकरे का वगैरह ये जो होता है, आप जैसे उसको लेकर के ऐसे लटकता है पूरा फैट ना इंटेस्टाइन के साथ, सेम थिंग। तो ग्रेटर कर्वेचर से जो शीथ हैंग करेगा, जो फैट हैंग करेगा, फैट कनेक्टिव टिश्यूज जो हैंग करेगा, वी कॉल दैट पार्ट एज ग्रेटर ओमेंटम, ग्रेटर कर्वेचर, देन and folds over the intestine, it looks like an apron। तो यानी कि अगर आपको पूछेगा कि ओमेंटम में कौन सा भाग looks like an apron, तो ग्रेटर कर्वेचर। सो apron made up of fat and tissues। फंक्शन क्या है, फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, तो जितने भी, सबसे पहला कोई आपको पेट में मार दिया, कुछ भी हो गया, तो एक जो है कुशन का काम करता है। ठीक है, कुशन का, कुशन माने गद्देदार वाली चीज। देन इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। ठीक है, किसी भी प्रकार का इंफेक्शन हुआ, ऑलवेज रेडी। देन वॉलिंग ऑफ द इंफेक्शन, यानी कि जो भी इंफेक्शन हुआ है उसको, जैसे कि चोर को पकड़ के जेल में डालते हैं, तो सिमिलरली एक दीवार बनाना, किसी भी इंफेक्शन के चारों ओर एक दीवार बनाना, दैट इज कॉल्ड वॉलिंग ऑफ द इंफेक्शन, मूव्स टू द एरिया ऑफ द इंफेक्शन और द इंजरी टू सील ऑफ, उसको सील करना। जैसे चोर को जेल में सील कर देते हो, उसी तरह से ये भी सीलिंग का काम करता है। एंड ऑब्वियसली जो कुशन है, गद्देदार चीज है, तो फैट से बना है, तो फैट का स्टोरेज करेगा। तो रसा रक्ता मेदा, रसा रक्ता मांसा मेदा, तो दिस मेदा धातु का स्टोरेज वहां पे भी हो रहा है। क्लियर? सो ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम आर आल्सो द पार्ट ऑफ मेदा धातु। Then you can see this picture, यहां से ये पीछे से आया है, अगर ये पूरा लोगे, this is all greater omentum and this part is lesser omentum। You can draw this picture।
एआई भी ना कभी कभी गलती कर देता है। क्लियर? So now we come to the second half, that is lesser momentum. तो ग्रेटर मोमेंटम हम देखा था, ग्रेटर कर्वेचर के उससे निकल के आपके पूरे इंटेस्टाइन को वो कवर कर रहा है, वो फैटी लेयर कवर कर रहा है बाहर से। लेसर मोमेंटम में क्या होगा कि लेसर कर्वेचर से निकलेगा, ठीक है। तो लेसर कर्वेचर और लिवर को जब ये फैट शीट की तरह जब एक दूसरे से कनेक्ट करके रखेगा, वहां पे कुशन प्रोवाइड करेगा, तो उसको हम लेसर मोमेंटम बोलेंगे, ठीक है। नाउ फंक्शंस है एक्ट एज पासेज ऑफ ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फेटिक गोइंग टू द लिवर एंड स्टमक। तो इन स्टमक और लिवर के बीच में जितने भी आदान प्रदान होते हैं, चाहे वो ब्लड वेसल्स के हो, नर्व्स के हो, या वेगस नर्व्स के हो, या लिम्फेटिक्स के हो, ठीक है। तो इन इन ये सब जो है इट हैज टू क्रॉस थ्रू दैट फैटी शीथ, ओके। नाउ व्हाई मोमेंटम इज इंपॉर्टेंट, इट मे बी अ एमसीक्यू और इट मे बी फॉर वाइवा, ओके। व्हाई इट इज कॉल्ड पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन, because it moves to the site of infection or injury to help contain the problem। तो जो कुछ भी वहां पे एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हुआ है या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको वॉल ऑफ करने के लिए, उसको सील ऑफ करने के लिए, ठीक है। सर्जन्स ऑफन नोटिस इट्स यूजफुलनेस इन सर्जरीज रिलेटेड टू कैंसर, ट्रॉमा, infections, okay। why? Because fat always help in cushion। तो अगर कुशन का हेल्प, कुशन में मदद कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का जब ट्रॉमा होगा, चोट लगेगा, जैसे ब्लंट ट्रॉमा हुआ, तो वहां पे उसको सेफ गार्ड करने के लिए ये मोमेंटम हेल्प आउट करेगा, ठीक है। किसमें? सर्जरीज में हेल्प करते हैं, जस्ट लाइक अ कुशन, ठीक है। कुशन की तरह से हेल्प करेंगे। कोई भी आप सर्जरी करते हो तो उसकी जो वॉल, बाहर के जो वॉल होते हैं ना, तो जैसे उसका फैटी लेयर हो गया, तो whenever you are operating, so you leave the fat as it is। आपको फैट निकालने की जरूरत नहीं है, because they will help in healing, ठीक है। so these are, ये जो फैट सेल्स है ये हीलिंग में मदद करते हैं। किसी भी प्रकार का इंफेक्शन हुआ तो उससे लड़ने के लिए मदद करते हैं। तो मान लो कोई इंफेक्शन का साइट है, आपने उस इंटेस्टाइन के इस भाग में सर्जरी किया, तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि उसके साथ उसका फैट भी निकालना। यू कैन लीव द फैट एज इट इज एंड दैट विल हेल्प इन हीलिंग प्रोसेस। इन सम कंडीशंस लाइक एडवांस कैंसर्स, ट्यूमर्स कैन स्प्रेड टू मोमेंटम, ठीक है। तो कैंसर्स कैन ऑल्सो स्प्रेड टू मोमेंटम। सो फाइनली ग्रेटर मोमेंटम, जिसको हम एप्रॉन बोल रहे थे, जैसे आप कंबल ओढ़ के सोते हो ना, तो आपको मम्मी सुबह उठाने के लिए आएगी, कंबल हटाएगी, तो उसी तरह से व्हेन अ सर्जन ओपन्स द एब्डोमेन, उसको कंबल ऐसे उठाना पड़ता है टू गो इनटू द इनर एस्पेक्ट, ठीक है। चाहे जैसे लिवर को देखना है, या गॉल ब्लैडर को देखना है, या इंटेस्टाइन को देखना है, इन दोज केसेस यू हैव टू टेक द ब्लैंकेट। तो this greater momentum is nothing but the blanket made up of fat and immune cells that lies over your intestine to protect, heal and fight against the infection. Now we'll move towards the second part of duodenum. So the first part thing is कि the second part of duodenum कहाँ से कहाँ तक है। तो superior duodenal flexure से लेकर के इंफीरियर डिओडिनल फ्लेक्चर तक जो है सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम कहलाएगा। सो एक्सटेंशन फ्रॉम सुपीरियर डिओडिनल फ्लेक्चर टू इंफीरियर डिओडिनल फ्लेक्चर, ओके। देन फर्दर वी हैव द हॉरिजॉन्टल पार्ट एंड देन वी हैव द डिओडिनो-जजुनल फ्लेक्चर, राइट। फोर्थ पार्ट,
So we are talking about the second part. So superior duodenal flexure to inferior duodenal flexure. So we call this as second part of the duodenum, and very important structures enter into the second part of duodenum. That is, your bile drains into the second part of duodenum. Your pancreatic juices, pancreatic ducts, whatever it secretes, it drains into the second part of duodenum. Okay. So what is happening is superior duodenal flexure exactly opposite to the first lumbar vertebrae. तो superior duodenal flexure कहाँ आ रहा है? L1, ठीक है? L1 vertebrae and passes vertically downwards and passes. So this is L1 and it passes vertically downwards. Okay. So our extension is clear. Now what are the structures coming? तो उसके आगे in front of, it is coming in front of the hilum of the right kidney. तो किडनी के आगे आ रहा है, यानी we are talking about the posterior structure, duodenum के जो पीछे है. मान लो ये किडनी है, किडनी के ऊपर second part of duodenum है, right? तो in front of the hilum of the right kidney. Then along the right side of the vertebral column in paravertebral gutter. Then this part we call it as the right lateral plane and this side we call it as the left lateral plane. So it is coming within the right lateral plane. If I draw a straight line, we call it as right lateral plane. ऐसा नहीं है कि वो right lateral plane के बाहर जा रहा है, उसके अंदर में ही आ रहा है. You can see this. It is coming within it. It is not going outside. So it is coming within the right lateral plane and ends in the inferior duodenal flexure. खत्म कहाँ पे हो रहा है? Inferior duodenal flexure, opposite to the L3. So this is from L1 to L3. Clear? And further it continues with the third part. Clear? So this is coming exactly in front of the hilum of the right kidney because it is on the right side. So right kidney, hilum of the right kidney. So after knowing the extension of the second part of duodenum, we will move towards the peritoneal relation. तो सेकंड पार्ट का पेरिटोनियल रिलेशन कैसा होगा? तो क्या पहले मैंने बताया, सेकंड पार्ट रेट्रोपेरिटोनियल है और फिक्स्ड है, और पेरिटोनियम का जो आगे वाला हिस्सा है, दैट इज द एंटीरियर सरफेस दैट इज कवर्ड विथ पेरिटोनियम. ठीक है, एंटीरियर सरफेस. वेयर इज द मॉडल? Where is the model? मैं लेके चला गया. ये कह रहा है कि एंटीरियरली जो पेरिटोनियम है इसको पूरी तरह से कवर करता है. एंटीरियर सरफेस इज कवर्ड विद पेरिटोनियम. एंटीरियर सरफेस सेकंड पार्ट का इट इज कवर्ड विद पेरिटोनियम एक्सेप्ट नियर द मिडिल वेयर इट डायरेक्टली रिलेटेड टू colon. Except near the middle where it is directly related to colon. तो आप ये दिख रहे हो, ये हमारा असेंडिंग कॉलन. आगे चल के ये ट्रांसवर्स कॉलन जब बनता है, ठीक है, तो ट्रांसवर्स कॉलन जो है डियोडिनम के ऊपर से गुजरता है. डियोडिनम के ऊपर से गुजरता है. ये आपका डियोडिनम है, ऊपर से गुजरता है. ऊपर से गुजरने का मतलब है कि उसके डियोडिनम का जो सेकंड पार्ट है, पिछला जो सेकंड पार्ट जो है ट्रांसवर्स कॉलन के आगे है या पीछे. अगर मैं बोलूं कि ट्रांसवर्स कॉलन ये ऊपर से गुजर रहा है तो सेकंड पार्ट ऑफ डियोडिनम उसके आगे है या पीछे? पीछे है. ये देख रहे हो डॉटेड लाइंस और ये स्ट्रेट लाइन.
अगर आप इसमें ही देखोगे तो दिख रहे हो उसमें, एक्सेप्ट नियर द मिडिल पार्ट, तो सिर्फ ये बीच वाला जो हिस्सा है ये यहां पे पेरिटोनियम कवर नहीं करता है, ठीक है। और अगर विजरल रिलेशंस की बात करो तो कौन कौन सा ऑर्गन उसका संबंधी है रिलेशन, तो एंटीरियरली जो है ओब्वियसली है, राइट साइड में है तो राइट लोब ऑफ लिवर, और ये क्या है, ट्रांसवर्स कॉलन आएगा इसके रिलेशन में, ऊपर से ट्रांसवर्स कॉलन, ऊपर से आगे से राइट लोब ऑफ द लिवर, देन रूट ऑफ ट्रांसवर्स mesocolon, we'll talk about mesocolon when we are talking about large intestine, ठीक है, एंड स्मॉल रूट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये सब एंटीरियरली जो है रिलेटेड है। एंड इसके पीछे सेकेंड पार्ट के पीछे मैंने पीछे से ऑलरेडी बोला है, जहां से हाइलम के ऊपर है ना, ये किडनी है हमारा, और ये इसका हाइलम है जहां से एंट्री स्ट्रक्चर्स एंट्री एग्जिट कर रहा है, तो सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम जो है यहां से शुरू हो रहा है, राइट। तो सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम जो है किडनी के हाइलम के ऊपर है, राइट, यानी कि किडनी का हाइलम डिओडिनम सुपीरियर डिओडिनल फ्लेक्सर के पीछे, क्लियर। सो पोस्टीरियरली एंटायरली नॉन पेरिटोनियल, यानी कि पोस्टीरियरली जो है पेरिटोनियम कवर नहीं करता है। तो इसका पोस्टीरियर रिलेशन क्या है, तो जैसे मेरे घर के पीछे संतोष का घर है, इसका मतलब ये हो गया कि डिओडिनम के सेकेंड पार्ट के पीछे किसका घर है, किडनी के हाइलम का, क्लियर। उसके बाद राइट रीनल वेसल्स, पेल्विस, राइट यूरेटर, ओब्वियसली है, हाइलम से क्या क्या निकलेगा, यूरेटर निकलेगा, उसके बाद उसके रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ये सब निकलेंगे ना हाइलम से, तो ये सब आ जाएंगे। उसके बाद अब क्या आ गया, श्वास मेजर मसल, श्वास मेजर, श्वास मसल्स, श्वास नहीं, श्वास, टी साइलेंट है, श्वास मसल, श्वास मेजर, श्वास माइनर, ठीक है, राइट श्वास मेजर मसल, देन राइट एज ऑफ इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। यू कैन सी दिस, ये एब्डोमिनल एओर्टा है, दिस इज एब्डोमिनल एओर्टा एंड दिस इज इंफीरियर वेना कावा, इन सारे स्ट्रक्चर्स पे आ रहा है, एब्डोमिनल एओर्टा पे भी आ रहा है, इंफीरियर वेना कावा पे भी आ रहा है ना पीछे से, क्लियर है। मैं इसको सिंपल में लिखा दूंगा, आप इसको चाहिए तो कॉपी करो, नहीं तो मैं बुलेट पॉइंट्स में लिखवा देता हूं, ठीक है। सी पोस्टीरियरली व्हाट आई हैव सेड इज, किडनी का जो राइट किडनी का जो हाइलम है उसके ऊपर आ गया, समटाइम्स द सुप्रारीनल ग्लैंड, देन दिस श्वास मेजर मसल राइट साइड, ठीक है, एंड दिस इंफीरियर वेना कावा, इसका जो राइट बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर यू कैन सी, एंड दिस इज द राइट बॉर्डर, तो राइट बॉर्डर का इंफीरियर वेना कावा का राइट बॉर्डर भी सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनल से पोस्टीरियरली रिलेटेड है, ठीक है। राइट कोलिक फ्लेक्सर का मतलब ये हो गया कि ये इसके लिए यहाँ पे हिपैटिक फ्लेक्सर हो गया, लेकिन ये जो ट्रांसवर्स कॉलन यहां से बना है, तो ये इसके लिए जो प्रोमिनेंसी एरिया हो गया, वी कॉल इट एज, जो ट्रांसवर्स कॉलन इस तरह से आया ना, तो उसके लिए ये फ्लेक्सर बन गया, राइट कोलिक फ्लेक्सर। देन मीडियली, इसका जो मीडियली होगा, हेड ऑफ द पैनक्रिया, हेड ऑफ द पैनक्रिया, मीडियली हेड ऑफ द पैनक्रिया। और कौन सा सेकंड पार्ट में कौन सा आर्टरी सप्लाई आया है पीछे से,
gastroduodenal artery bifurcating into right gastroepiploic artery and superior pancreatoduodenal artery. भूल गए है ना, पीछे से आ रहा है ना, तो उसका जो एनास्टोमोसिस है, ठीक है, एनास्टोमोसिस मतलब हाँ, एनास्टोमोसिस मतलब जब दो वेसल्स एक दूसरे के सामने आते हैं, ठीक है, दो तरह के वेसल्स जब सामने आते हैं, देन वी कॉल इट एज तो सुपीरियर और इंफीरियर पैनक्रियाटिक डियोडिनल वेसल्स का जब एनास्टोमोसिस होता है, दैट इज ऑल्सो कमिंग मीडियली, ठीक है, मीडियली आ रहा है. यू रिमेंबर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से जो इंफीरियरिक पैनक्रियाटोडियोडेनल आर्टरी और जो सीलेक्ट रंग के जो ब्रांचेस आए हैं वो, तो इन दोनों का जो एनास्टोमोसिस, मैंने क्या बोला था, फोरगट और मिडगट का दोनों पार्ट है ना, तो इनका जो जंक्शन होगा, इनका जो जंक्शन होगा, दिस जंक्शन पॉइंट दैट इज कॉल्ड एनास्टोमोसिस, ठीक है. ये हो गया या डस्ट डायग्राम. ओके, खत्म नहीं किया. सो अपार्ट फ्रॉम दिस एनास्टोमोसिस ऑफ इंफीरियर पैनक्रियाटोडियोडेनल आर्टरी एंड सुपीरियर पैनक्रियाटोडियोडेनल आर्टरी का जो एनास्टोमोसिस हुआ है, अपार्ट फ्रॉम दिस मीडियली जो स्ट्रक्चर और जो आ रहा है, that is your bile duct and the major pancreatic duct, ये दोनों आकर के सेकेंड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में जाकर के ओपन हो रहे हैं. क्लियर. ये पीछे से आकर के बाइल का और मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों यहां एंट्री हो रहा है, though it is going medially, though it is the bile duct is coming from that side. Okay, now you have written that, वो खत्म हो गया. Now you write interior of the second part of duodenum, interior अंदर का, interior of second part of duodenum. तो फीचर्स में क्या देखे थे, प्लीके सर्कुलरिस, प्लीके सर्कुलरिस. Then we have this major duodenal papilla and minor duodenal papilla. So we have two openings. This is called major duodenal papilla, and see there is one more opening. ये एक यहाँ पे ओपनिंग दिख रहा है, एक छोटा सा ट्यूब यहाँ. So this is minor duodenal opening and this is major duodenal opening. So we have major duodenal papilla and minor duodenal papilla. Major duodenal papilla on the posterior medial wall, okay, medial wall of second part of 10 centimeter distal to the pylorus. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट का दोनों का मिलन हो रहा है, और दोनों, एक बाइल डक्ट ऊपर से आया, इधर से पैनक्रियाटिक डक्ट आया, ये डियोडिनम में गया, and this whole together structure what we call it as ampulla of Vater. Ampulla of Vater. Clear? MCQ के लिए पूछूंगा पक्का. Ampulla of Vater. Then we have minor duodenal papilla. So minor duodenal papilla 2 centimeter above the major duodenal papilla. This is 2 centimeter ऊपर the major duodenal papilla. And these, इसमें जो openings है इसके थ्रू एक्सेसरी मतलब जो एक्स्ट्रा पैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो उसमें ओपन होता है. नेक्स्ट वी हैव व्हाट वी कॉल इट एज प्लीका सर्कुलरिस. प्लीका सर्कुलरिस, प्लीका सर्कुलरिस जो है, यू नो दिस लॉन्ग स्ट्रक्चर्स. प्लीका सर्कुलरिस आर्चेस अबव द मेजर पैपिला.
and this plicae, we have plicae semicircularis, and then we have something plicae longitudinalis. ठीक है, plicae longitudinalis. ठीक है, so vertical fold downwards from major papilla, sometimes vertical fold upwards from the major papilla, marks the bile duct. So see, यहां तक जो भी स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, these are plicae semicircularis या plicae circularis, but when you are coming below this you have longitudinal. Okay, see, now we have seen the papillas, the major duodenal papillas and minor duodenal papilla, and we know that कि मेजर duodenal papilla में हमारा bile duct और pancreatic duct दोनों आकर के ड्रेन करेगा, राइट। लेकिन ड्रेन करना ऐसा नहीं है कि मतलब गटर की तरफ बहेगा, उसको कंट्रोल करने का भी मैकेनिज्म होना चाहिए। जैसे हमारा रेक्टम फुल होता है तो स्फिंक्टर रिलैक्स होता है ना, तो उसी तरह से जब हमें भूख लगती है, पैनक्रियाटिक जूसेस ये सब जब, तो जो हमारा जो सेंटर है ब्रेन में, जो सेंटर है जो हमें महसूस कराता है कि अब कुछ अच्छा स्मेल आ रहा है, भूख लग रहा है, भूख जैसा कुछ चीज लग रहा है, तो क्या होगा, ये सब सेक्रेशंस आएंगे एंड ब्रेन जो है इसको सिग्नल करेगा कि जो स्पिंटर्स है अपने अपने दरवाजों का गेट खोलो। तो जब तक ये स्पिंटर्स रिलैक्स नहीं होंगे तब तक बिलियरी सेक्रेशंस एज वेल एज पैनक्रियाटिक सेक्रेशंस मेजर डिओडिनल पैपिला में रिलीज नहीं होगा। क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे ये बिलियरी का है, बाइल डक्ट का है, तो बाइल डक्ट का जो स्पिंटर होगा उसको हम बोलेंगे स्पिंटर कोलिडकस। स्पिंटर कोलिडकस। जैसे आप ब्रेक मारते हो ना, ब्रेक मारते हो तो पीछे वाले में स्प्रिंग रहता है, तो ऐसा ही है, ठीक है, स्पिंटर कोलिडकस, ठीक है। Then we have one more sphincter for the pancreas. Okay, and apart from this ये इसका अपना कंट्रोल होगा, लेकिन मेजर डिओडिनल पैपिला में रिलीज करने के लिए जो बाइल डक्ट का स्पिंक्टर होगा, पैनक्रियाटिक डक्ट का स्पिंक्टर होगा, रिलीज होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैकेनिज्म है, डबल डोर। जैसे होता है ना, ओटी का फर्स्ट डोर खोले फिर उसके बाद अंदर गए, राइट, तो सेम थिंग इट इज। तो इन दोनों का स्पिंटर और इन दोनों का स्पिंटर से एक कॉमन स्पिंटर बना है जिसको हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वैटर, ठीक है, एंड वी कॉल इट एज hepatopancreatic ampulla, known as major duodenal papilla or hepatopancreatic ampulla, and the sphincters of the bile duct and pancreatic duct together we call it as ampulla of Vater. Very important for MCQs types. Okay, that's it.